Hello, friends. Good morning. Wishing you all a very happy and prosperous belated both Purnima. I'm sure all of you had a great experience this year. Wish you all prosperity and success and health in your life. So today I have brought another topic for discussion, which is mainly related to modern Indian history. We'll see here the evaluation of modern Indian history, how things took up shape and ultimately culminated into India's freedom struggle. So, in past my videos, I have covered topics related to economics, related to operations research, and I am planning to take up other topics related to other genres like maths, aptitude, or something. So, if you want anything for me to discuss specifically, you can put that in the comment section. And I request you again and again, please like and share and spread the videos amongst your friends, which will provide me encouragement in my endeavor and also will help people gather some benefit out of this. Okay, okay. So with this, let's get started. So this here I have brought the broad overall timeline of everything. Just in short, because there are many examinations like the uh, civil services, other state exams, lots of other exams which asks about the dates and the timelines, and you should have a overall broad idea of where things happen and what happened. So, if you want, because if I had to discuss each of them individually, it would have taken lots of time, would have made the video unnecessarily long. So, if you want me to discuss any topic out of them, you can drop a comment or can text me separately. I'll take up that topic and make a video on that separately. So, like talking about the advent of Europeans. So, before Europeans, what happened? Like there were the Delhi Sultanate, which started its rule with Qutbuddin Aibak, started in 1200s, which is the 13th century, and it lasted till Ibrahim Lodi. That is the first battle of Panipat, where Babur won 1526. With that, Mughal rule was established in India, and Mughal emperors like the greater Mughals, the later Mughals. So what happened? Like uh, the Europeans had started to come on the 1498, the first being uh, Portuguese. Like we have all heard the name of Vasco da Gama. So he was the explorer, traveler who first landed on India's coast at uh, Cochin. So that the Zamorin was the ruler of that area. He welcomed him and encouraged him to set up or to trade with them. So all these was triggered by the control of the Ottoman Empire and the Muslim Arab merchants over the sea trade route. So this prompted the Europeans to go and explore and find out new routes from where they could penetrate the Asian countries like India, Indonesia, other because the trade was hampered. Was there the Ottomans and other Arab merchants dominated the trade? They didn't allow the Europeans to trade in that trade. This triggered the Europeans' interest in these parts of the world. So we'll see the Europeans coming. First, as I mentioned, was Portuguese in 1498. Then we saw the Dutch 1602, which was a very late period of time. So between 1490 and 1602, largely the Portuguese dominated India and this part of the trade with their own viceroys and policies like Cartes policy and all these things, Lucy policy. Like they were more interested in religious conversions and they forced a lot of people to convert to Christianity. Dutch. Then we saw English 1618, which will ultimately dominate the India for the next few couple of centuries. Then the French were the last to come, 1664. So, and in between there was a small country, Denmark Danes. So I have not mentioned it here because there was not much significance. Yes. So ultimately, we will see that other European powers will be phased out automatically, and the main rivalry between will be between English and French side. So after this Anglo-French rivalry, we'll see that three wars will be happening. After the third war, uh, the Treaty of Paris being signed between English and the French will be sidelined completely, and English will be set up as dominant rulers of this country. And while all this is happening among them, there were other things happening like side by side, like the Battle of Plassey in 1757. So this was a major game-turning event in the Indian history. Like Sirajuddaula was the Nawab of Bengal,
Clive, Robert Clive was the governor of the East India Company of England. He defeated him and gained the control of Bengal through a puppet ruler called Mirza, and gathered large amount of revenue from that war. Then Battle of Buxar was again fought by the forces of Mir Qasim, the Nawab of Oudh, and the Mughal ruler Shah Alam. There was the British defeated them. The Treaty of Allahabad was signed, which made the Mughal emperor at that time a mere pensioner, and the Britishers became the virtual rulers of this country, okay, gathering enormous rights over revenue collection, Diwani rights, and everything. So this helped them to consolidate their position further in the Indian landscape. Next is the Anglo-Mysore Wars, Anglo-Maratha Wars, and Anglo-Sikh Wars. So with the Mughal rule weakening, the vacuum will be tried to fill by other Indian forces like Marathas. Marathas uh, thought of them of being the most dominant force in India. They thought themselves of defeating the English, and they were very brave and very valiant. They had achieved commendable amount of progress and victory, but ultimately the unity between the various Maratha confederacies and their own traitors led them to the ultimate downfall of Marathas being subjugated by the policy of doctrine of subsidiary alliance, which made them virtually not with great amount of powers. Anglo-Sikh wars. So there, apart from them, there were other few wars like Anglo-Bhutan War, Anglo-Afghan wars, but I have not mentioned them because they are not of much interest in case of India. Okay, that's why I have skipped them. So you can take a screenshot if you want of the timelines that I have mentioned because these are very important in some examinations. Okay, so this is the broad as I mentioned. I have given you a brief over the last slide itself. So like English started as a trader. They first approached the court of Jahangir. Jahangir, as you remember, ruled during 1605 to 1627. Uh, Thomas Roe, Sir Thomas Roe, and uh, there was one gentleman called, I think, Hawkins. They came to his rule and they requested for setting up their factories in Surat and were ultimately given that. The Farman issued by Farooq Siyar, who was a later Mughal ruler in 1717, was called the Golden Farman. That granted the English with unlimited Diwani rights. Like they could mint their own coins, they could collect Diwani through their trade anywhere. So all these removed the limitation that Aurangzeb and other earlier Mughals had set on the Britishers. So this made their coffers very heavy, very full with lots of revenue. Okay, so this helped them to fight wars with other Indian forces and ultimately emerge victorious in all of them. So Clive set up a dual governance system, as I said, where they would collect the revenue, Britishers would collect the revenue, and the Nawab or the local ruler will be responsible for administration and looking after the subjects. So the responsibility will be with the Nawab because he was answerable to the people, but he would have no power because he did not have any rights to collect revenue. And this Britishers will have all the power because they collected revenue, but they had no responsibility, ironically, because they were not answerable to the people. They didn't look after the welfare of the people. Okay, they were only interested in collecting revenue and in their own self matters. Battle of Buxar, as I mentioned, Mughal ruler Shah Alam was become a mere prisoner. And then the expansion policy like doctrine of subsidiary labs. So what was subsidiary? So subsidiary alliance alliance मतलब आपके सोचिए आपके पास एक किंगडम, यू आर रूलर ऑफ किंगडम, ठीक है। अगर आप ब्रिटिशर्स जाके आपका अप्रोच करेंगे कि आपके अगल बगल में जो किंगडम्स है वो आपको कभी भी अटैक कर सकते हैं, दे आर इन अ मूड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इट, और आपका जो सोल्जर्स है वो शायद हार जाए उनसे, अगर सब लोग इफ एवरी नेबरिंग किंगडम यूनाइट अगेंस्ट यू तो आप हार सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश से वी विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन। हम आप अपनी जो आर्मी है आप उसको हटा दो, यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी आर्मी। हम अपनी आर्मी को आपके किंगडम में रखेंगे, आप उसको मेंटेन करने के लिए पैसे दीजिएगा, ठीक है। और हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, आपको ये गारंटी है कि आप किसी से नहीं हारोगे, यू विल ऑलवेज रिमेन सेफ। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, कोई भी अटैक करेगा आपको वी विल वेज अ वॉर, आपको कोई आर्मी रखने की जरूरत नहीं, हम आर्मी रखेंगे, आपको बस उसको पैसे देने हैं टू मेंटेन दैट, ठीक है। और दे ऑल्सो प्रॉमिस दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी दे वुड नॉट इंटरफेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन वो होता नहीं है। वो प्रॉमिस तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, वायलेशन तो होंगे। यू आर मेंटेनिंग आर्मी, धीरे धीरे आप कुछ भी इधर उधर का प्रोटेक्ट
बहाना वहाना बना के आप कुछ भी करके आप अंदर घुस ही जाते हैं। जैसे हुआ था अवध के साथ, अवध भी सोशल अलायंस एक्सेप्ट किए थे, लेकिन अल्टीमेटली उसको मिस गवर्नेंस एलिगेशन देके वहां के जो रूलर थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी करके, बिकॉज पावर नहीं है ना तब रूलर के पास। यू डोंट मेंटेन आर्मी, देन व्हाट गुड इज द रूलर हिमसेल्फ। आर्मी एंड मिलिट्री कंट्रोल इज विद द ब्रिटिशर्स, तो वो तो चाहे जब मर्जी आपको हटा देंगे। अल्टीमेटली इवेंचुअली वही हुआ। प्रोडक्शन ऑफ लैब्स लाइक ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। मतलब आप, अगर आपके पास, मतलब आप अगर राजा हो, आपका कोई लीगल मेल हेयर नहीं, मतलब आपके पास आपका बेटा या आपका कोई भी होना चाहिए ना, जो आपके आपके जाने के बाद आपका थ्रोन संभाले। ठीक है, अगर आपका वैसा कोई है नहीं, ठीक है, जैसे हमने देखा था इल्तुतमिश के बाद राजिया सुल्ताना बनी, तो ऐसा ब्रिटिशर्स मेड अ रूल, मेड अ पॉलिसी कि अगर आपका ऐसा कोई मेल है, मेल कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है जो लीगल हो, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स विल एनेक्स टेरिटरी, वो आपसे आपकी टेरिटरी, आपकी आपके इंतकाल के बाद वो आपकी टेरिटरी आपसे छीन लेंगे। सो ये इससे भी बहुत सारे, झांसी जैसे थी हमारी लक्ष्मीबाई, फिर ऐसे सतारा, तांजौर, संबलपुर, नागपुर, ये सब टेरिटरीज ऐसे एनेक्स किए गए। और फिर आते हैं एक्ट्स के बाद। अब ब्रिटिश क्राउन को खबर लग रही है कि यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है ट्रेड वगैरह, रेवेन्यू हो रही है, लेकिन उतनी रेवेन्यू आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? तो वो देख रही है सस्पिशियस कि क्या चल रहा है यहाँ पे, हमने थोड़ी छूट दे के रखी है इनको, अभी थोड़ा थोड़ा इन पे थोड़ा खबर लिया जाए। तो इसलिए दे ऑल्सो टुक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, और उन्होंने भी एक्ट्स वगैरह धीरे धीरे लाने शुरू किए। जैसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, वो डुअल गवर्नमेंट जो उन्होंने सेटअप किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको हटा दिया गया। फिर बॉम्बे मद्रास जो मेन प्रेसिडेंसीज थी अलॉन्ग विद बंगाल, वो सबॉर्डिनेट किया गया उनके गवर्नर को, और गवर्नर ऑफ बंगाल वो वही मेन हो गए, बाकी दोनों को सब। अब पीस इंडिया, पीस इंडिया के 1784 में आया। उसमें क्या हुआ, जो मतलब एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और मिलिट्री के लिए संभालेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रेवेन्यू पार्ट देखेंगे, और भी कंपनी। पहले क्या था, तो कंपनी की सब कुछ देखते हुए अब एक अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सिर्फ रेवेन्यू को देखेंगे, दोनों सेपरेट किया गया। चार्टर एक्ट 1813, ये क्या है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, मतलब इंग्लिश इंग्लैंड में कोई और ट्रेडर, कोई और मर्चेंट इंडिया में ट्रेड नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन वो 1813 के चार्टर एक्ट से हटाए गए। कोई भी इंग्लिश मर्चेंट वहाँ पे ट्रेड कर सकता है। बस मोनोपोली एग्जिस्ट करती थी, तो इस एक्ट के तहत भी इन केस ऑफ टी एंड चाय वो मेंटेन था, उसको हटाया नहीं गया था। ठीक है। और एक और फीचर क्या थी कि कोई भी मिशनरी यहाँ पे आ नहीं पाएंगे टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो भी हटाया गया। नाउ फ्रॉम 1813 onwards इंग्लिश मिशनरीज आल्सो कुड कम टू इंडिया, ओके, टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी, और जो भी करना है उनको वो आ सकते हैं। अब 1833 में एक और चार्टर एक्ट किया गया, वहाँ पे ईस्ट इंडिया ईईसी मतलब ईआईसी मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसको कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी किया गया। जो भी दो मोनोपोली लास्ट एक्ट में थे उनके लिए, टी और चाइना के केस वो भी हटाए गए, ठीक है, तो अभी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गए बॉडी। और एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया टू द गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो थे लॉ मेंबर, विच वॉज लॉर्ड मैकॉले इन दिस केस। और पर वो टेम्पररी मेंबर, जो परमानेंट मेंबर नहीं थे, वो बस टेम्पररी मेंबर थे। और गवर्नर ऑफ बंगाल जो टाइटल था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ बंगाल, तो आंसर विल बी लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, वो बनेगा। तो उसके बाद आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसके पहले दो एक्ट्स में उन्होंने मेंशन किया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल के लिए और मतलब अपने टेरिटरीज को रख सकती है, ठीक है। तो 53 वाले एक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया। लिखा था कि मतलब वो रख सकते हैं, लेकिन वो ईयर कितने कितना दिन और मतलब ये एक्सटेंड होगा उसका चार्टर, वो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ 1853 में कि सिविल सर्विस कंपटीशन जो जो भी है सिविल सर्विस, वो ओपन फॉर इंडियंस कर दिया। पहले क्या होता था, इंग्लिश में नहीं सिर्फ एग्जाम लिखते थे और उनको किया जाता था, लेकिन अभी कंपटीशन में इंडियन भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और 100 मेंबर जो लास्ट लास्ट एक्ट में जो टेम्पोररी मेंबर थे, ही ऑल्सो बिकेम अ परमानेंट मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। और इस एक्ट के दौरान हम लोग अभी जो इंडिया में देखते हैं सेपरेसी ऑफ पावर, लोग के तीन अलग पिलर्स है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो इस एक्ट के तहत स्टार्ट स्टार्ट किया गया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग होंगे, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, एक अलग से बॉडी विच वुड
वुड एडवाइस द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। ठीक है। वो मतलब उसके पास कोई पावर नहीं थे सच कि वो कानून बनाएंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ दे कुडंट इवन एग्जैक्ट प्रेशर, उतनी पावर नहीं था, बट बनाया गया था, दे वुड हेल्प एंड एडवाइस द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो अब एक इम्पोर्टेंट मोड़ आता है 1853 चार्टर एक्ट का। उसके बाद आप सबने सुना ही होगा, एक फेमस रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, उसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के बाद ये आया था रिवोल्ट। ठीक है। तो इसके रीजंस क्या थे? डिप्रिजनमेंट अमंग डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। ब्रिटिश रूल ऑपरेसिव था, तो आप तो आप तक पता ही चल गया होगा, जो मन वही करते थे वो लोग। ठीक है। सीजन्स के लिए हाई रेंट चार्ज करते थे, भुखमरी आ जाए, बाहर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उनको उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको देना। ठीक है। जमींदारी सिस्टम थी ऐसे, वो सब बहुत सारे ऑपरेसिव पॉलिसीज थे उनके। इंडी को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था peasants को, जिसकी जिसके लिए जमीन की जो फर्टिलिटी उर्वरता है वो एकदम खराब हो जाती है। तो वो एक था। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर आया था कि इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको पास खबर पहुंच गया था कि जो कार्ट्रिजेस यूज हो रहा है उसमें पिग फैट और काउ के फैट्स यूज की जाए, और पिग और काऊ हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लिए सेक्रेट। ठीक है। तो ये एक ट्रिगर बन गया। तो फिर सोल्जर्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया अगेंस्ट द ईशानी का। मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा, उनका एक मूवी भी बनी थी मंगल पांडे। ही वाज एन नोटेबल फिगर इस रिवोल्ट में। ही, आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। मंगल को उन्होंने किसी की हत्या की थी, तो मतलब कोई इंग्लिश ऑफिसर की, उसके बाद ये रिवोल्ट ऑफिशियली स्टार्ट। और ऐसा नहीं है कि ये पहला रिवोल्ट है, इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे अंश में, बहुत सारे पार्ट्स में चल रहे थे रिवोल्ट। जैसे बहुत सारे रिवोल्ट थे इधर उधर के। ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था, ट्रेजर्स ने रिवोल्ट किया था, कोई रिलीजियस ग्रुप ने रिवोल्ट, लेकिन वो सब छोटे छोटे, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, कि वो सब छोटे छोटे अलग अलग अपने अपने जो डिमांड्स थे उनके लिए रिवोल्ट कर रहा था, और वो अपना मतलब सेटिस्फाई हो जा रहा था, तो उसके लिए उसको और कोई उसको परस्यू नहीं करता। लेकिन ये एक लार्ज स्केल पे इवेंट, जैसे पॉइंट इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट है, था ये। मतलब बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास को छोड़ के और कुछ कुछ इंडियन रूलर्स को छोड़ के बाकी सबने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया था। 1857 कोई ज्यादा मतलब इट वॉज नॉट अ वेरी मॉडर्न टाइम, वो काफी पहले समय था, उसमें सब लोग पहली बार एकजुट हुए थे। तो उन्होंने उनके बाद वो तब के जो मुगल एम्परर थे, बहादुर शाह टू बहादुर शाह जफर, उनको प्रोक्लेम किया गया था एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। वो राजी नहीं थे, लेकिन रिलेक्टेंटली उनको बनाया गया, तो ही was a- we also agreed। ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे क्या थे, जो जो जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था इन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, शी लेड द रिवोल्ट फ्रॉम झांसी। देन जनरल बख्त खान फ्रॉम दिल्ली, कन्वर सिंह फ्रॉम बिहार, बेगम हजरत महल जो कि वजीद अली शाह की वाइफ थी, वो उन्होंने अवध से लीड किया। जैसे जैसे लोगों ने लीड किया, तो वो काफी बड़ा 1-2 साल तक चला रिवोल्ट अलग अलग पार्ट से। तो इसके परिणाम भी आए थे। तो व्हाट वर द रिजल्ट्स? लाइक द रिवोल्ट डेड सम सीरियस डैमेज एंड कैजुअलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ इंग्लिश आर्मी। हाउएवर, वो रिवोल्ट को उन्होंने क्रश भी किया था। उनके भी बड़े बड़े आर्मी कमांडर ऑफिसर्स थे, जैसे कॉलिन कैम्पबेल, हेनरी लॉरेंस, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने क्रश कर दिया था अल्टीमेटली। लेकिन बहुत मतलब एक इम्पैक्ट पड़ा था उनमें भी। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई चीटी को फूक करके उड़ा दिया, ऐसा नहीं। उन भारी अमाउंट में armed indemnity they also had to incur on their side to get made the British crown। एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी। अब तक क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि ये ज्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, दे abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। अब से वो ही लोग डायरेक्ट रूल करेंगे, ब्रिटिश क्राउन। इसके बाद ब्रिटिश मोनार्क ने डिक्लेरेशन ये किया था, इशू किया था 1858 में। ठीक है। जिसके बाद से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया था, और बाकी सब जो उनको डिक्लेयर करना था कि वो सब आया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा इंडिया और इंग्लिश में, फ्री कंपटीशन होगी। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया पीपल। ये सभी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने थोड़ी सी कह के थोड़ा शांत करने की कोशिश की। और एक और चीज किया था कि इंडियन आर्मी में मतलब
रॉयल इंडियन आर्मी क्या था, उनमें इंडियंस रिक्रूट करने कम किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे मेजर फैक्टर फॉर दिस रिवोल्ट वाज द इंडियन सोल्जर्स। तो उनको लगा कि इंडियन सोल्जर्स पर कम रिक्रूट करेंगे तो अपराइजिंग की चांसेस फ्यूचर में कम दिखाई देंगे। ठीक है, दिस वाज अनदर थिंग दैट आई हैव मेंशन किया, ये मैंने बताया, ये बहुत important। ये फेल किया था, लेकिन इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द रूलर्स। तो इसको इसलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। आई थिंक वीडी सावरकर जी का एक बुक है जहाँ पर उन्होंने इसके बारे में लिखा है, रिवोल्ट को। उन्होंने इसमें शायद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहा था। एक बुक है उनकी, आई थिंक वेरी नेम। आपका इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड रीड दैट, अच्छी बुक है। तो दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो 1885 में थोड़ी देर बाद हुआ था, लेकिन जो मतलब चिंगारी है, मतलब जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इसी रिवोल्ट से लिंक्ड है। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे संगठन तैयार किए जाएंगे, जैसे इंडियन लीग हो गया है, सोशलिस्ट, ऐसे ऐसे करके बहुत से संगठन। क्योंकि मतलब इंग्लिश को लगा कि इंडिया में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पावरफुल सेगमेंट है जो एडुकेटेड एलिट्स है। ठीक है, जिन जो इंटेलिजेंसिया, मतलब उनको अगर उनकी उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो अगर वेंट करने, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी नाम की एक थ्योरी आई थी कि सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस है तो सेफ्टी वॉल्व वो स्ट्रेस को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करके मतलब सिस्टम को ब्रेक करने से रोक सकता है, जैसे फ्यूज में होता है, फ्यूज अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में। तो ऐसे ही कांग्रेस एक ऐसा फोरम बना था जहाँ पे सब लोग मतलब अपने जो डिसकंटेंट है विद द इंग्लिश रूल, जो मतलब आपको लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा, जो आपके कंप्लेंट्स वो आप कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, कोई लड़ाई नहीं, कोई मार नहीं, आप अपनी डिमांड रखिए। ठीक है, वो इंग्लिश रूल के साथ आप निगोशिएट कीजिए, आप बात कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, तो सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। मतलब मतलब दिस वाज मेनली डन टू अवॉइड वॉर्स और रिवोल्ट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, और जो अर्ली के आपके देखेंगे शुरुआती दौर पे जो इंग्लिश कांग्रेस के लीडर्स थे, वो 3 Ps में बिलीव करते थे, प्रेयर, पिटिशन, ठीक है, और ऐसे आई एम फॉरगेटिंग द अदर पी, बस ऐसे ही थे, दीवार डिबेट और डिस्कशन से करते थे इनको, मॉडरेट्स का करती है। अब फिर 1905 में कांग्रेस सेशन के बाद दो दो ग्रुप्स निकलेंगे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, स्प्लिट होगा, सूरत स्प्लिट बोल के, वो भी आगे हिस्ट्री में जाके, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में बनाया गया था एक पोस्ट, और वाइस जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग थे यहाँ पे तब के समय तत्कालीन, तो वो ही बने थे फर्स्ट वाइस रॉय। लेकिन वो सुप्रीम नहीं रहे। पहले क्या होता, गवर्नर जनरल को जो करना था, अब नहीं, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको देखेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते थे, वो एक इंग्लिश के लेजिस्लेटर, मतलब वहाँ के जो हाउस ऑफ, यहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा है ना, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ कुछ है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स से ही वो एक चुने गए, मतलब एक हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य हुआ करते थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको एक एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी दी थी, दिया कि वो वहाँ वहाँ देखेंगे, ही वुड बी देयर बेस्ड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में बेस्ड होंगे, और उनकी एजेंट के तौर पे वाइस का, मतलब मेजर डिसीजंस जो होगा, मतलब कुछ भी अप्रूव अप्रूव करना है, कुछ भी है, तो दैट वुड बी डन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वाइसरॉय के पास पावर्स थोड़े लिमिट किए गए। ठीक है, और वाइसरॉय की काउंसिल की जो थी उसका तो थी। और एक और था कि इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं टी के चार्टर के थ्रू, उन उनमें एक्सपेंशन दिखाया है, आगे आगे के दौर में देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट आएगा आपका 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट, वहाँ पे काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा विद इंडियन मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड होंगे, उनके पास पावर नहीं रहेगी, दे वुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लेकिन वो उन इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा भागीदारी मिली थी, वो भी एलिट्स को मिली थी, लेकिन मिली थी। इंडियंस इंडियंस वर बीइंग involved in the administration. ठीक? तो I hope कि this video would have been of some help to you who had doubts in understanding this part of Indian history, और modern Indian history में इंटरेस्ट नहीं आता है, या कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ याद करने में दिक्कत हुई, तो आई हैव tried to made a very concise video, concise notes के तहत I've tried to bring out some important points, some key points, some key dates, timelines, जो कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे भी जा सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जहाँ मैंने खत्म किया उससे आगे बाकी के एक्ट्स और कांग्रेस के इम्पोर्टेंट मीटिंग सेशंस के बारे में आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, कल सी। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ फीडबैक देना है, तो यू आर फ्री टू डू एंड फ्री टू कमेंट। ओके, तो ओके, चलिए फिर, स्टे सेफ, आई विश यू ऑल वेरी गुड डे अहेड। ओके, तो बाय, थैंक यू, थैंक्स।